Hello, everyone. Welcome to SSB ACE Preparation, where repeaters become officers. Today, we have Rohan with us, who got recently recommended from SSC Navy Tech. Hello, Rohan. How are Hi you? Himalaya. I'm fine. I'm fine. Great. So, can you please give us a brief introduction about yourself? Yeah. Hello everyone. Jai Hind. I am Rohan and I come from Vijaypura, Karnataka. So, how many SSB attempts you have appeared so far? So telling about you about my SSB attempts, totally I have appeared six attempts of my SSB and I got recommended on my sixth attempt. Uh, other the five attempts, the result of the five attempts were like three screen outs and two conference outs. And I have been to boards for like Bangalore, Mysore, Bhopal, and Prayagraj. On my sixth attempt, that is for Navy Tech entry, I got recommended from 33 SSB Bhopal, which gave me like a proper exposure to all the assessment environments wherever I have been to other SSB centers also. Yeah. Great. So, what inspired you to join the forces? Initially, while doing engineering, I thought ki I'll have my whole life given to these IT sectors and all. But later, when I entered this sector, I got to know that I'll not be doing my whole life in this sector. And in that in that moment, my brother Rahul, he was the one attending for SSBs. So he had asked me once ki gi- go give an attempt. First, I was so adamant that I'll not do these things. But later, when I gave that first attempt, and I got confidence out on the first attempt only. So then I thought ki I have something in me which I can, with proper guidance and with proper studying and all, so I might crack it. So after the fourth attempt and all, I got to know that yeah, this is the thing that I want to do now. So that was the main motivation thing that I got here. What stage of your journey did you feel that you needed a structured kind of guidance so that it Okay. will help you in your SSB? Uh, at my first attempt on 24 SSB Bangalore, so I was a fresher there. So I used to all watch YouTube videos. And thought ki I'll clear it off. Then I went there. I was like a children in a candy store. So I used to watch all the person who was studying there, the one who's studying outside of the gates also like let us studies for some things. So but luckily I got in on the first day only. So when I went on the next 4 days, it was like something on the cloud nine. I was feeling something good, and that was the first time even I didn't have my phone for 5 days. So it was something good experience. So, but unluckily I got out on the fifth day of the like conference out. तो उसके बाद I thought कि if I studied perfectly about this, तो I might crack it. तो उसके बाद और दो अटेम्प्ट में एक फ्री नोट हो गया. तो the other one was again in the Prayagraj conference out हो गया. Then later after this तो अच्छा लगा मतलब फिर मैंने सोचा कि आई नीड अ प्रॉपर गाइडेंस कि नॉट ऑल द टाइम एफर्ट्स मैटर्स कि डायरेक्शन अगर अच्छा मिला तो एफर्ट्स एंड गाइडेंस विल गिव यू द फ्रूटफुल रिजल्ट्स. तो आफ्टर माय फोर्थ अटेम्प्ट एट बेंगलुरु वेयर आई गॉट स्क्रीन्ड आउट आई genuinely felt कि आई नीड अ स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस. Then till then that I was always putting the efforts only, but proper introspection and clarity I needed it. तो उसके बाद जैसे मैं और मेरा भैया बात कर रहे थे एसएसबी के बारे में, देन ही सेड दैट हीज फ्रेंड एयरफोर्स मैसूर ही टुक गाइडेंस फ्रॉम सर. तो मैं उनसे बात किया भैया से नंबर लेके. देन आई टॉक विथ हिम, देन ही टोल्ड एवरीथिंग अबाउट द स्टेप्स एंड द क्लासेस दैट सर यूज्ड टू टेक. तो आई थॉट कि लेट्स गिव इट अ ट्राई. कुछ फ्रूटफुल मिलेगा इससे ऊपर तो क्यों ना ट्राई करूँ कोई. तो इसीलिए मैंने ट्राई किया. फिर सर से पहले फर्स्ट डे मैंने टॉक टू सर. तो इट वाज लाइक सो मेस्मराइजिंग थिंग कि आई एम एक्चुअली टॉकिंग टू अ डिफेंस पर्सन. तो मुझे अच्छा लगा सर से बात करके. देन उन्होंने जो जो पहले प्री रिक्विजिट्स थे, ही आस्क्ड मी टू सेंड इज सम टैट फैट स्टोरीज दैट वी हैव रिटन प्रीवियसली. तो दिस थिंग आई एक्नॉलेज्ड इट एंड सर ने बोला कि या यू आर लैकिंग इन दीज थिंग्स, तो आई विल गिव यू अ प्रॉपर गाइडेंस.
तो देन आई एक्सेप्टेड इट. तो आफ्टर फोर्थ thing only I got to know that I need a proper guidance later that. Great. So, this is how you got to know about SSBA's preparation. लेटर जैसे भैया ने भी बताया था. देन आई ऑल्सो चेक देयर इंस्टाग्राम पेज ऑल्सो विच इज वाइडली स्प्रेड देयर. तो मैं और दोस्तों लोगों से भी पूछा था कि वो बोले हाँ ये एक साइट है. तो मैंने चेक किया देयर ऑल द रिकमेंडेशंस इन द पोस्ट एंड ऑल द वीडियोस दैट दे हैव पुट देयर. तो उनसे मैंने पर्सनली टेक्स्ट भी किया कि हाउ इज दिस, हाउ इज दैट. तो उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा है, यू विल नेवर रिग्रेट डूइंग इट. तो या उससे भी थोड़ा मुझे गाइडेंस मिला कि दूसरे लोगों से मीटअप भी किया जो प्रिपेयर भी कर रहे थे, जो रेकमेंडेड भी हुए थे. सो हाँ उन्होंने मुझे बोला कि ये अच्छा है. देन आई गॉट टू नो अबाउट द सर, तो उनसे बात किया मैंने. Great. How did you approach change after joining SSBA's Preparation Academy? In my previous attempts before the guidance thing with from sir, so I used to randomly watch any YouTube videos, और आई यूज टू रैंडमली टेक अप टेस्ट. जो जो मेरे साथ फ्रेंड्स थे वो जो प्रिपेयर कर रहे थे उनसे रैंडमली कुछ भी थीम बनाया, स्टोरीज बनाया, डिस्कशन में हल्ला वगैरह कर दिया. तो या वो मैं करता था पहले. फिर जीटीओ में उतना तो इधर तो कुछ है नहीं कि अच्छे से लूं. देर वॉज नो पर्सन टू गाइड ऑल्सो कि कैसे रहता है ऑब्जेक्ट्स, ऑब्स्टेकल्स कैसे रहता है, हाउ डू यू डू इट, हाउ डू यू टैकल ग्रुप थिंग्स इन जीडीज एंड ऑल, जीपीज में कैसे प्लान करना है, ये सब मुझे कुछ पता नहीं था तभी. तो मैं कुछ रैंडमली यूट्यूब वीडियोस देखता था, या तो कोई टेलीग्राम पे चैनल्स थे हु यूज टू डू दिस. तो कोई चार पांच बच्चे मिलके एक चैनल बना दिया जो जो डिस्कस कर रहे थे, तो उधर मैं ज्वाइन हुआ था. तो उसके बाद जब फोर्थ अटेम्प्ट पे आई गॉट स्क्रीन आउट तब बोला कि अब प्रिपरेशन सीरियस चाहिए, ऐसे रैंडम रैंडम पे यू नॉट सक्सीड. तो उसके बाद आई व्हेन आई वेंट इनटू दिस एसएसबी प्रिपरेशन एकेडमी, और आई गॉट टू डू द होल एसएसबी प्रोसेस फॉर द 5 days. फर्स्टली जो जो एसेस करते हैं, जो जो ओएलक्यूज देखते हैं, और तेरा पर्सनालिटी कैसे बनता है उस पे. सो दिस थिंग मैटर्ड मी अलॉट. तो उसके बाद पर्पस मेरे को अच्छा मिला कि यू हैव टू मेक इट, एंड फोकस्ड प्रिपरेशन हुआ. देन आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग लाइक व्हाई आई वाज डूइंग समथिंग, आई मीन नॉट जस्ट व्हाट टू डू. तो माय प्रिपरेशन बिकेम मोर प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक, एंड aligned with what actual SSB needs from you, what actually assessors see in you. तो वो मेरे को प्रॉपर मिला. तो या उसके बाद ऐसे चेंज हुआ. What were the key reasons for your earlier rejections? And according to your self analysis, what were the improvements made? A little didn't get about the proper OLQ awareness that they needed. I mean, weak psychological responses. And sometimes जब स्क्रीन इन हुआ था, देन आई यूज टू अ लिटिल बिट ऑफ वो ग्रुप का फियर रहता है ना, कि प्रेशर रहता है ऐसे कौन परफॉर्मर करेगा, इफ एट ऑल देयर इज एनी पर्सन हु इज लाइक रिपीटर बहुत है, तो ही माइट टेक गुड चांसेस ऑफ मी. तो वो सब प्रेशर बिल्ड हो रहा था, और उसमें मैं एक्चुअली आई वाज गिविंग अप दैट टाइम. तो ड्यूरिंग द जीटीओ टास्क्स एंड ऑल, तो आई डिड हैड पोटेंशियल, बट आई वाजंट प्रोजेक्टिंग माई सेल्फ नेचुरली इफेक्टिवली. तो दीज वे द इंट्रोस्पेक्शन दैट आई डिड. तो ये सब मैंने सर से भी बात किया कि ऐसे ऐसे हो रहा है. तो उन्होंने बोला हाँ या दीज थिंग्स हैपन फॉर द रिपीटर्स नो अदर टाइम. तो वो सर अच्छे से प्रॉपर गाइडेंस दिया मेरे को कि इससे ये चेंज कर, देन यू विल डेवलप दीज ओएल क्यूब्स ऑल्सो, और अच्छे से पढ़ाई कर, रीड करंट अफेयर्स एंड ऑल. तो वो मेरा अच्छा किया, जो जो सर बताए थे एवरी स्टेप आई फॉलोड देयर सर. सो ये हुआ मेरा, अभी ये रेकमेंड तो हो गया अभी सर से सर. Great. Many, many congratulations. थैंक यू, थैंक यू. Did SSB ACE help you understand your gaps more clearly? अरे यस डेफिनेटली. नहीं तो मैं और इफ एट ऑल इट वुडंट हैव बीन, आई वुड बी गिविंग स्टिल अटेम्प्ट्स नाउ ओनली विदाउट इवन अ recommendation. So yeah, SSB Hayes did help me understand my grasp clearly, because like they used to have daily sessions और continuous interactions होते थे सर के साथ. And the thing that I like is वो honest feedback देते थे कि you are lacking these things, to improve that you have to do these things regularly. If I was lack, मैं पहले थोड़ा जनरल नॉलेज लैक कर रहा था. तो then sir said I will send you the current affairs also, I'll send you GKs, I'll send you defense news. तो ये हमेशा पढ़ा कर. तो I did read about it. I used to make short notes of it. I used to send sir also कि सर ये न्यूज मैंने पढ़ा है. तो ये सब हुआ. देन
the mentors like helped me clearly identify where I was going wrong in the psych test also, then for other GTOs and interviews also. Like, for the first time, my weakness were no longer vague. They were specific and workable. वो मुझे अच्छा लगा. तो इसलिए SSBS did help me, like the gap जो मेरे थे, तो from repeater to getting recommended वो जो gap था ना, तो वो सर ने बहुत अच्छे से समझाया मेरे को. बढ़िया बढ़िया. How did the academy guide you in converting the rejection into a learning phase and getting recommended? As I previously said, ki all the gaps that were there from the repeater to the recommendation thing, they were cleared. And the first time, I have listened other friends also ki I did take coaching, but recommend nahi ho pa raha hu. But here, what in the SSB Ace Performance does is rejections were treated as feedback, not as failures. So Oh, we were guided on do's and don'ts, the realistic expectations, and they always used to give practical corrections. तो या इंटरेक्टिंग डेली विथ मेंटर्स तो वो होता ही रहता था. नॉट जस्ट द क्लास अवर्स, उसके बाद भी इफ यू हैव एनी स्टोरीज एनीथिंग दैट यू वांट टू टॉक टू अस, जस्ट पुट अ मैसेज. So they are always ready to help you. And with all, and we also used to have a group with the fellow aspirants also, that we used to discuss all the things with sir and also the aspirants, and this helped me realize that improvement is always a gradual and a systematic process. तो ऐसे फटाक से नहीं मिल रहा था, वो आराम से होता है, जो सर से मेरे बहुत मदद किया सर ने इसमें से. हाँ, like-minded people अगर तुम्हारे साथ होंगे और with from the same guidance, हाँ you know, हाँ you'll get so many insights. हाँ, इंसाइट भी मिलता है. और लाइक अगर किसी अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है, वो भी शेयर करेगा कि यू कैन ऑल्सो डू दिस, ये सर ने मुझे बताया था. So that we used to share all the things that sir used to tell in the classes, and also the personal feedbacks also. अगर तेरे में कुछ वो कमी है तो यू कैन अडॉप्ट दैट थिंग एंड चेंज योर थिंग्स. ये सब मिला मुझे. Exactly. हाँ हाँ. तो मार्केट में तो इतने सारे कोचिंग सेंटर्स है, या कह लो कि बहुत सारे ही है. What made you choose SSB ACE Preparation Academy over the others? I came to know about this SSBS from my brother's friend. तो ही टॉक मी इनटू इट. तो मैंने और दूसरे जहां जहां एसएसबी दिया था मैंने, द पहले 5 अटेम्प्ट्स पे, तो आई यूज टू मीट हु यूज टू गेट कॉन्फ्रेंस आउट ऑल्सो एंड द स्क्रीन आउट्स ऑल्सो. तो वो लोग बोल रहे थे कि इतना इफेक्टिव वो उसमें कुछ मिला नहीं गाइडेंस उसमें से. एंड दिस थिंग आई एक्सपीरियंस पर्सनली इज दैट दिस इज गाइडेंस ओवर कोचिंग. क्योंकि कोचिंग में क्या होता है, व्हाट मेंटर्स हैव दैट इन माइंड, वो बता दे क्योंकि सभी लोग यू हैव टू फॉलो द सेम थिंग. पर गाइडेंस इज सच अ वे दैट दे विल पर्सनली टेक योर प्रिपरेशन थिंग्स एंड ऑल. तो वो लोग असेस करते हैं कि व्हाट ऑल ही इज लैगिंग इनटू एंड व्हाट ऑल थिंग्स दैट ही नीड्स टू प्रिपेयर ऑल्सो. तो दिस टैगलाइन इज वेरी गुड, लाइक गाइडेंस और कोचिंग. ये मेरे को सर को भी बताया था सर, इससे मुझे बहुत हेल्प हुआ कि आप पर्सनल गाइड करते हैं, पर्सनली वो जो रिमार्क्स देते हैं ना सर कि इस टेस्ट पे तू ये कर रहा है. सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट द पर्सनैलिटी, इट वाज ऑलवेज अबाउट द टेस्ट ऑल्सो कि इस टेस्ट में यू आर लैकिंग दिस, सो यू हैव टू प्रैक्टिस दिस मोर ऑफन. तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा. एंड अदर इट्स लाइक इट्स अ फोकस बिल्डिंग अंडरस्टैंडिंग इंस्टेड ऑफ मगिंग अप आंसर्स. और जो जो इंटरव्यूज में वो सब, जैसे एसएसबी इंटरव्यूज में था कि जो भी है पर्सनालिटी हमेशा शो करो, डोंट हाइड इट. कभी कभी ऐसे भी जो दूसरे कोचिंग वाले आते हैं कि जस्ट से दिस ऑफ, वो जिंदगी में किया भी नो या ना किया भी, वो लोग मैं बहुत देखता हूँ कि कुछ नहीं करते, चुप ही बोल देते एसएसबी इंटरव्यू में. पर ऐसा नहीं, सर ने बोला कि वॉट एवर यू डू इन योर लाइफ इज वॉट एसएसबी इज ऑल अबाउट. सो वॉट एवर जो जो किया है तूने जिंदगी में फ्रॉम डे, सुबह से शाम तक जो जो किया है, यू जस्ट हैव टू रिफ्लेक्ट इट. कुछ उसके ऊपर कुछ क्रॉस क्वेश्चन आएगा तो जो तूने ऑलरेडी जिंदगी में किया है तो वही बताना है उसमें बस. तो या दिस थिंग लाइक मेड मी चूज एसएसबी और अदर थिंग्स. So